اس میں ضمانت ہو جانا عمران خان صاحب کی، ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ یہ کیس بنتا ہی نہیں ہے۔ اس کیس کو بنانے کا مطلب ہی یہ تھا کہ آپ نے غلامی کی بدترین مثال قائم کرنی تھی۔ جس شخص نے ملک کی سلامتی اور خود مختاری کا دفاع کیا، جس شخص نے اس ملک پہ ہونے والے جو حملے تھے ان کو روکا، جس شخص کو آپ ایک ہیرو کا ٹائٹل دینا چاہیے تھا اس کو آپ نے مجرم بنا دیا۔ اس کے مد مقابل شہباز شریف جس نے کہا تھا بیگرز آر ناٹ چوزرز، اور خواجہ آصف نے کہا تھا امریکہ تو ہماری وینٹیلیٹر ہے، اور ان کو آپ نے حکمران بنا کے آپ نے ان کو مدعی بنا دیا۔ اور اس میں کوئی شک نہیں، بڑی تفصیل کے ساتھ آج بھی آرگومنٹس ہو چکے ہیں۔ جب آپ نے ڈیمارش کر دیا، نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے 2 دفعہ وہ میٹر گیا، تو اس کے بعد کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی تھی کہ یہ کیس بنایا جاتا۔ اچھا، اگر ایف آئی آر کو ایز اے ہول آپ تسلیم بھی کر لیں تو ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے یہ قابل ضمانت کیس ہے۔ آج سپریم کورٹ نے قابل ضمانت ڈکلیئر کر دیا۔ مجھے بتائیں تو وہ جسٹس عامر فاروق صاحب کا فیصلہ جو کہ ہمارے خلاف تعصب رکھتے ہیں وہ کدھر گیا؟ وہ جو ٹرائل کورٹ جو ہمارے خلاف تعصب رکھتا ہے اس کے فیصلے کی کیا حیثیت رہی ہے؟ تو قابل افسوس بات تھی کہ عمران خان کے خلاف پولیٹیکل وکٹائمائزیشن میں جب کمپرومائز ججز بھی اور ادارے بھی استعمال ہونے شروع ہو جائیں تو وہاں انصاف کا نظام وہ ڈسٹرب ہوتا ہے۔ وہ انصاف اور قانون کا جو دوہرا معیار ہے وہ ساری دنیا دیکھتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ سب سے اہم بات یہ ہے کہ کل ہم نے 19 تاریخ کو پٹیشن فائل کی ای سی پی کے پاس، ہم نے کل 4 پٹیشنز فائل کی الیکشن کمیشن کے پاس، لیکن بدقسمتی سے کسی ایک میں بھی سنوائی نہیں ہوئی۔ اور کل ہم نے انتظار کیا چیف الیکشن کمیشنر کو ملنے کے لیے، اس سے ملنے سے بھی انکار کر دیا۔ اور کل ہم نے پٹیشن یہاں جمع کرائی تھی، آج صبح لگ گئی ہے۔ آج انہوں نے الیکشن کمیشن کو بلا کے اور اٹارنی جنرل کو بلا کر یہ کہا کہ جو کچھ ظلم، جو تشدد، جو بربریت، جس طرح اغوا برائے بیان، جس طرح 3 ایم پی او کے آرڈرز اور جس انداز سے گرفتاریاں ہو رہی ہیں، یہ لیول پلینگ فیلڈ میں نہیں ہے۔ آپ کسی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کو اگر آپ اس طریقے سے سائیڈ لائن کریں گے تو یہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہوگا، یہ پارٹی کو کرش کرنے کے مترادف ہوگا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد آج 3 بجے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس ہماری میٹنگ ہے، ہم وہاں جائیں گے، وہاں اپنی ساری گزارشات پیش کریں گے۔ ہمارے پاس جو رپورٹس آ چکی ہیں تقریباً 200 رپورٹس آ چکی ہیں، جہاں کچھ لوگوں کو گرفتار کیا گیا، کچھ لوگوں کو ریٹرننگ افسر کے دفتر سے گرفتار کیا، کچھ لوگوں کو باہر نکلتے ہی گرفتار کیا، کچھ لوگوں کو سفید کپڑوں میں لوگ اٹھا کے لے گئے، کچھ لوگوں کے گھروں میں چھاپے مارے گئے، کچھ لوگوں سے نامینیشن فارم چھین لیے گئے، کچھ لوگوں سے نامینیشن فارم جمع شدہ، تیار شدہ فیلڈ ان کو اٹھا کے لے گئے، کچھ علاقوں میں پروپوزر اینڈ سیکنڈر کو اٹھا کے لے گئے، اور ایف آئی آر ان کے خلاف کٹ رہی ہیں۔ تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے میڈیا، سوشل میڈیا پہ بھرا پڑا ہے، سب نے دیکھا ہے، اور ذمہ داری کس کی ہے؟ یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ہے۔ لیکن بدقسمتی سے آج یہ بھی آبزرویشن ہوئی ہے، الیکشن کمیشن اپنا کام چھوڑ کے صرف عمران خان کے پیچھے جیل میں جا کر کے توہین الیکشن کمیشن کی کارروائی کر رہے ہیں۔ اگر وہ یہ حرکتیں کریں گے تو مجھے بتائیں کہ کیسے الیکشن کمیشن کے باعث ہونے کے بارے میں کسی کی رائے قائم نہیں ہوگی۔ یہ بھی آج جسٹس سطر مد اللہ صاحب نے آبزرویشن دی ہے۔ پھر انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے بھی جسٹس سطر مد اللہ صاحب کی آبزرویشن آئی ہے کہ آپ نے صرف ایک پارٹی کو تو نوٹس کر دیا، آپ کے پاس 150 کے قریب اگر باقی جو پارٹیاں ہیں ان کا بھی اسی طرح پولیٹیکل پارٹیز کا الیکشن ہوا ہے، ان میں سے تو آپ نے کسی کو نہیں دیا۔ تو لہٰذا یہ جو دوہرا معیار ہے یہ غلط ہے، غیر قانونی ہے۔ ہم آج یہ مطالبہ کرتے ہیں الیکشن کمیشن سے، ان ریٹرننگ افسر سے، کہ جو ریٹرننگ افسر اور عملہ اس کاروائی میں ملوث رہا ہے، الیکشن کمیشن کے پاس اختیار ہے کہ ان کے خلاف ڈسپلنری ایکشن کرے اور ان کے خلاف مقدمات درج کرائے اور ان کو جیلوں میں بند کرے۔ اگر وہ نہیں کریں گے تو الیکشن کمیشن اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کر رہا۔ تھینک یو۔ بہت ایک امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ ہے بھیا ایک امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ ہے جی۔
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम उम्मीदवारान से ये गुजारिश की जाती है कि तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम ने अपने हर पेज के ऊपर एक नंबर शेयर किया हुआ है। जिसको जहाँ पर पूरे मुल्क के अंदर शिकायत है, काइंडली आप तमाम से गुजारिश है मीडिया के तवज्जो से कि अपनी शिकायत उस व्हाट्सएप नंबर पर भेजें ताकि आपकी शिकायत को हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने रख सकें। उसमें दो चीज़ें आपने देनी है, एक तो आप जिस इलाके से हैं वो लिखें, अपना हल्का लिखें और अपना मुकम्मल नाम लिखें, और आपके साथ अगर कोई इंसिडेंट हुआ है तो वो थोड़ा सा उसको नरेट कर दें ताकि आपकी शिकायत को बर वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने रखा जा सके। ये पूरे 2 दिन जहां भी आपके साथ मसला आता है, काइंडली उस नंबर के ऊपर रब्ता करें, उस नंबर के ऊपर अपना तमाम पैगाम और अपनी डिटेल्स जो हैं वो शेयर करें ताकि आपकी कानूनी इमदाद की जा सके। बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा, आज क्योंकि साइफर केस में इमरान खान साहब की जमानत मंजूर हुई है, शाह महमूद कुरैशी और खान साहब की, आपको क्या लगता है इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे या किसी और मुकदमे में उन्हें जो है वो गिरफ्तार हो दो में? देखें, और नैब के मुकदमात में गिरफ्तार किया हुआ है लेकिन उन केसेस में कोई जान नहीं है। हम उम्मीद रखते हैं कि उसमें भी हम बेल पटिशन मूव कर चुके हैं। हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह इलेक्शन से पहले वो बाहर आ जाएंगे। अगली बार बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जी सर, आज थोड़ा बताइए कि आज सुप्रीम कोर्ट में आप आए हैं, क्या तवक्कुआत है? खान साहब की ज़मानत होने जा रही है? मैं इंशाल्लाह होपफुल हूँ कि आज ज़मानत हो जाएगी इस केस में। और हमने आज लाहौर हाई कोर्ट और चंडी बेंच में भी केस किया था कि खान साहब से मिलने की इजाज़त दी जाए ताकि हम उनसे कंसल्ट कर सकें टिकट्स की तकसीम के हवाले से और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का माहौल दें। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अब्दुल अजीज़ साहब ने आर्डर कर दिया है कि 2 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन इसमें आर्डर पास करे हमारी पटिशन्स के ऊपर। इंशाल्लाह हम होप रखते हैं। सर, पीटीआई के लिए कैसे पॉसिबल होगा इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करना, जबकि आप जब भी कागजात नामजदगी के लिए कोई भी आपका कैंडिडेट जाता है तो उठा लिया जाता है या उसको साइड लगाया जाए? क्या वजह है? देखें, ये जुल्म है, फस्तायत है, गैर कानूनी हरकतें हैं। यही वजह है कि हमने इन रिटर्निंग ऑफिसर के ऊपर ट्रस्ट नहीं था। हमने कहा था कि नहीं, आप अदलिया से रिटर्निंग ऑफिसर्स लें, जब सुप्रीम कोर्ट ने उस आर्डर को सस्पेंड कर दिया। लेकिन हम ये समझते हैं कि इन रिटर्निंग ऑफिसर्स ने ये माफिया बने हुए हैं, ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के या उन लोगों के हाथों में खेल रहे हैं, लिहाजा उनसे हमें इंसाफ की तवक्को नहीं है। इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट में भी कल पटिशन फाइल कर चुके हैं, लाहौर हाई कोर्ट में भी पटिशन फाइल की है, बाकी हाई कोर्टों में पटिशन फाइल हो रही हैं और हम इलेक्शन कमीशन के पास भी जा चुके हैं और हम उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह हमें इंसाफ मिले। सर, उस्मान डार के घर के बाहर पुलिस आ गई है, उनकी वालदा अभी कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए जा रही थी, तो क्या कहेंगे इस पे? अब पुलिस उनको कागजात नामजदगी जिस तरह पहले छीन लिए थे बाकी लोगों से, उनसे भी छीन सकते हैं, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, ये सब कुछ जो कुछ भी ये कर रहे हैं इलीगल काम है। बिल आखिर सबको एक राइट मिलेगा, अदालतें खुली हैं, इलेक्शन कमीशन बैठा हुआ है और अगर इनकी आंखें बंद हैं तो फिर हमारी आखिरी उम्मीद अदलिया ही है। और अदलिया भी इस पर खामोश रहेगी तो जो इनकलाब आ चुका है वो इनकलाब जो शूरी इनकलाब है जिसके ज़रिए लोगों ने अपना राइट ऑफ वोट एक्सरसाइज करना है, तो हम नहीं चाहते कि कोई ऐसा इनकलाब आ जाए जिसके ज़रिए इस मुल्क को और मुल्क की रियासत को नुकसान। बल्ले के निशान के हवाले से आज फैसला आने वाला है। फैसला होगा इंशाल्लाह। मैं होपफुल हूँ कि हमारे हक में आएगा और अगर ना आया तो हम उसको चैलेंज करने का हक रखते हैं। प्लान बी है अगर फैसला आपके हक वो में हम नहीं बताएंगे, आता, आप बताएंगे। अगर देखा जाए माजी को तो आपके हक में अभी तक कोई फैसला इस तरह के आए नहीं है। सर, आज जो केस चल रहा है उसके बारे याद माजी अजाब है यार। अब सर, आज जो साइफर केस चल रहा है सर, 5 मिनट हमें दीजिए। इंशाल्लाह देखें, मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी को दिफा करने वाले शख्स इमरान खान के ख़िलाफ़ ये मुकदमा बनाना ग़ुलामी की बदतरीन मिसाल कायम करने के मुतरादिफ है। मैं नहीं समझता कि इस तरह ये कौम आइंदा अपने हीरोज़ के ख़िलाफ़ अगर इस तरह के मुकदमे बनाने लग जाएगी तो उसका नुकसान हमारी न सिर्फ कौम को होगा, हमारी रियासत को। अब्दुल अजीज़ साहब ने आर्डर कर दिया है कि 2 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन इसमें आर्डर पास करे हमारी पटिशन्स के ऊपर। इंशाल्लाह हम होप रखते हैं। सर, पीटीआई के लिए कैसे पॉसिबल होगा इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करना, जबकि आप जब भी कागजात नामजदगी के लिए कोई भी आपका कैंडिडेट जाता है तो उठा लिया जाता है या उसको साइड लगाया जाए? क्या वजह है? देखें, ये जुल्म है, फस्तायत है, गैर कानूनी हरकतें हैं। यही वजह है कि हमने इन रिटर्निंग ऑफिसर के ऊपर ट्रस्ट नहीं था। हमने कहा था कि नहीं, आप अदलिया से रिटर्निंग ऑफिसर्स लें, जब सुप्रीम कोर्ट ने उस आर्डर को सस्पेंड कर दिया। लेकिन हम ये समझते हैं कि इन रिटर्निंग ऑफिसर्स ने ये माफिया बने हुए हैं, ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के या उन लोगों के हाथों में खेल रहे हैं,
لہٰذا उनसे हमें इंसाफ की तवक्को नहीं है, इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट में भी कल पटिशन फाइल कर चुके हैं, लाहौर हाई कोर्ट में भी पटिशन फाइल की है, बाकी हाई कोर्टों में पटिशन फाइल हो रही हैं और हम इलेक्शन कमीशन के पास भी जा चुके हैं और हम उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह हमें इंसाफ मिलेगा। सर, उस्मान डार के घर के बाहर पुलिस आ गई है, उनकी वालदा अभी कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए जा रही थी, तो क्या कहेंगे इस पर? अब पुलिस उनको कागजात नामजदगी जिस तरह पहले छीन लिए थे बाकी लोगों से, उनसे भी छीन सकते हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये सब कुछ जो कुछ भी ये कर रहे हैं इलीगल काम है, बिल आखिर सबको एक राइट मिलेगा, अदालतें खुली हैं, इलेक्शन कमीशन बैठा हुआ है और अगर इनकी आंखें बंद हैं तो फिर हमारी आखिरी उम्मीद अदलिया ही है, और अदलिया भी इस पर खामोशी रहेगी तो जो इनकलाब आ चुका है वो इनकलाब जो शूरी इनकलाब है जिसके ज़रिए लोगों ने अपना राइट ऑफ वोट एक्सरसाइज करना है, तो हम नहीं चाहते कि कोई ऐसा इनकलाब आ जाए जिसके ज़रिए इस मुल्क को और मुल्क की रियासत को नुकसान हो। बल्ले के निशान के हवाले से आज फैसला आने वाला है। फैसला होगा इंशाल्लाह, मैं होपफुल हूँ कि हमारे हक में आएगा और अगर ना आया तो हम उसको चैलेंज करने का हक रखते हैं। नहीं, प्लान बी है अगर फैसला आपके हक वो में हम नहीं आता, बताएंगे, क्योंकि आपको बताएंगे। अगर देखा जाए माजी को तो आपके हक में अभी तक कोई फैसले इस तरह के आए नहीं है। सर आज जो केस चल रहा है उसके बारे याद माजी अजाब है यार। अब सर आज जो साइफर केस चल रहा है सर, 5 मिनट हमें की बात दीजिए। बता दें। इंशाल्लाह देखें, मुल्क की सलामती और ख़ुद मुख्तारी को दिफा करने वाले शख्स इमरान खान के ख़िलाफ़ ये मुकदमा बनाना ग़ुलामी की बदतरीन मिसाल कायम करने के मुतरादिफ है। मैं नहीं समझता कि इस तरह ये कौम आइंदा अपने हीरोज़ के ख़िलाफ़ अगर इस तरह के मुकदमे बनाने लग जाएगी तो उसका नुकसान हमारी न सिर्फ कौम को होगा, हमारी रियासत को होगा, हमारे मुल्क को होगा। थैंक यू। सर, किस हल्के से इलेक्शन कंडक्ट करने जा रहे हैं? इस वक्त शहेब शहीन यहाँ से रवाना हो रहे हैं और आपसे कुछ देर बाद आप देख